Now, yesterday we have taken the force acting on a charge moving in magnetic field. If a charge is moving in magnetic field, then force will act on it, and that force was given by F is equal to Q into V into B into sin theta. If charge is moving parallel or anti-parallel to field, then force will be zero, and charge is moving perpendicular to magnetic field, force will be Q into V into B only. Direction was given by Fleming's left hand rule. This four-finger magnetic field, this middle finger flow of positive charge. अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो मिडिल फिंगर इलेक्ट्रॉन की अपोजिट रहेगी, एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. All the three are mutually perpendicular. Magnetic field, velocity and force. All three are mutually perpendicular. Then next heading, motion of charged particle in magnetic field. Motion of charged particle in magnetic field. Motion of charged particle in magnetic field, and especially we are taking the case charge enters perpendicular to field. अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करेगा, then what type of path it will perform? So this is your magnetic field. Cross मतलब perpendicular to plane of paper inward. Cross का मतलब perpendicular to plane of paper inward. This is the direction for magnetic field. And in this magnetic field B, charge plus Q enters with velocity V perpendicular to field. What type of path it will describe, that we are going to discuss. So write down, when charge Q enters perpendicular to magnetic field B, enters perpendicular to magnetic field B with velocity V, then it will experience Lorentz magnetic force which is given by F is equal to Q into V into B. As the charge is entering perpendicular to magnetic field, so the force that will be acting on this charged particle, that will be given by F is equal to Q into V into B. You can find the direction of this force. Yes, try to find the direction of force. Anyone? What will be the direction of the force? Apply Fleming's left hand rule. Magnetic field inward. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी राइट में है तो मिडिल फिंगर राइट, फोर्स आ रहा है अपवर्ड, तो फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड this force and velocity, they are always perpendicular to each other.
So write down, as force and velocity are always perpendicular, as force and velocity are always perpendicular, so charge will move in circular path. In circular path in class 11th and in class 10th both, you have read that in circular path force is towards the center and velocity is along the tangent. तो force and velocity जब always perpendicular होते हैं तो path इसका circular होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और सर्किल भी ऐसा होना चाहिए कि ये जो फोर्स है ये सेंटर की ओर हो और वेलोसिटी टेंजेंट हो. ऐसा सर्किल नहीं बन पाएगा, ऐसा सर्किल नहीं बनेगा, ऐसा सर्किल नहीं बनेगा. सर्किल ऐसा बनेगा जिसमें फोर्स सेंटर की ओर दिखे और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट दिखे. So this type of circular path it will be performing. तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे what type of path charge particle will perform when interperpendicular to magnetic field, तो आंसर लिखोगे circular path. What type of path charge particle perform when interperpendicular to field, तो परपेंडिकुलर टू फील्ड इंटर करेगा, देन पाथ विल बी सर्कुलर. और अगर पूछे लोकस ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटरिंग परपेंडिकुलर टू फील्ड, इंटरिंग परपेंडिकुलर टू फील्ड, अगर ये पूछे लोकस पूछे तो लिखोगे सर्किल. जो लोकस होगा इसका वो सर्किल होगा. और पाथ पूछे तो सर्कुलर बताओगे, लेकिन चार्ज को परपेंडिकुलर इंटर करना होगा. नाउ जब सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा तो हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना होगा. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ पाथ या सर्कुलर पाथ, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है तुम्हें. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए. नाउ इन क्लास 11th अगेन you have read that if any body is moving in circular path, it will be requiring centripetal force mv square upon r. Any body which is moving in circular path requires the centripetal force, and that centripetal force is always obtained from some other force. तो ये चार्ज सेंटीपीटल फोर्स रिक्वायर करेगा और वो सेंटीपीटल फोर्स कहीं से ऑब्टेन होगा. और सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है ऑलवेज, वो सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा वो ये मैग्नेटिक फोर्स है. तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. जब तक सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड नहीं होगा बॉडी सर्किल में मूव नहीं करती है. तो यहां पे देखो कोई एक फोर्स होगा जो सेंटर की ओर लग रहा है और वो मैग्नेटिक फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है और वो इसको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स. सो राइट डाउन द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स the Lorentz magnetic force will provide necessary centripetal force for circular motion. ये जो लॉरेंज का मैग्नेटिक फोर्स है ये इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVP और सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r.
याद आया होगा, 11 में पढ़ा था। सेंटीमीटर फोर्स इज mv²/r। एक वेलोसिटी कैंसिल कर दो और रेडियस को सब्जेक्ट बना दो, तो रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर 50 मीटर पर सेकेंड से इंटर करे और 100 मीटर पर सेकेंड से इंटर करे, तो 100 मीटर से जब मीटर पर सेकेंड से इंटर करेगा तो रेडियस सर्किल का बड़ा होगा, बड़े रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व करेगा। और कम वेलोसिटी से 50 मीटर से इंटर करेगा तो इसके पाथ का रेडियस लेस होगा। पार्डन, रेडियस mv/qb, वेलोसिटी न्यूमरेटर में है, रेडियस भी न्यूमरेटर में है, तो रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज 50 मीटर पर सेकेंड से इंटर करे और नेक्स्ट टाइम 100 मीटर पर सेकेंड से इंटर करे, तो जब 50 मीटर पर सेकेंड से इंटर किया तो मान लो ये सर्किल हुआ, और जब 100 से इंटर करेगा तो बड़े रेडियस का सर्किल मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्दर ये मास इनटू वेलोसिटी, ये कंबाइंड टर्म जो है ये मोमेंटम होता है। ऑल्सो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, एंड p इज द मोमेंटम। p जो है वो यहाँ पे मोमेंटम है, और मोमेंटम होता है m इंटू v। तो ग्रेटर द मोमेंटम, ग्रेटर विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये मोमेंटम के टर्म में आ जाएगा r इज इक्वल टू p/qb। ये भी एक फॉर्म हो गई फॉर्मूले की। अगर मोमेंटम दिया है, वेलोसिटी नहीं दी है चार्ज की, बल्कि मोमेंटम दे रखा है, तो मोमेंटम mv की जगह मोमेंटम रख दो, मोमेंटम/qb हो जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला तुमने 11th में पढ़ा था, if ke be the kinetic energy of charged particle। अगर मान लो क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ना देके उसने काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन 11th और 10th दोनों क्लास में पढ़ा गया है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो यहां से p आ जाएगा √2m इंटू ke, एंड देन रेडियस की एक और फॉर्म आ गई, p की जगह पे ये रख दो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला हो गया, ये मोमेंटम के टर्म में हो गया, और ये सिंपली वेलोसिटी के टर्म में हो गया। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर फाइंडिंग द रेडियस। ज्यादातर तो ये पहला ही वाला यूज होता है, कभी बाई चांस काइनेटिक एनर्जी दे दे, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, या फिर काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लोगे तो भी यूज हो जाएगा। Any doubt? Any doubt in this part? No. Then सेकेंड डेरिवेशन इसमें करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसी चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन
टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड का फॉर्मूला निकालेंगे। सो साइड हेडिंग डालो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ that is time taken to complete 1 राउंड। एक पूरा राउंड लेने में ये कितना टाइम लेगा, और टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस जो पूरे राउंड में ये ट्रेवल करेगा ये डिस्टेंस होगी 2πr। पूरे राउंड में जो डिस्टेंस हुई है वो 2πr, और इसको स्पीड से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, या टाइम स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब r की वैल्यू पुट कर दो 2πb, रेडियस इज mv अपॉन qb। वेलोसिटी कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2πm अपॉन qb। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। और यहां पे जो खास बात दिख रही है तुम्हें, time period is independent of velocity। वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। जो पार्टिकल 50 से इंटर करे और जब वो 100 से इंटर करे, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही केसेस में सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। रेडियस चेंज होगा बट द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी टर्म इन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अपना कनेक्शन रिकनेक्ट कर लेना, reconnect your connection। Who is Ginkgo? Ginkgo. Ginkgo, इससे किसने लॉग इन किया है? Anyone? Who was that?
ओके। सो रेडियस का ये फॉर्मूला हो गया था, टाइम पीरियड ये हो गया। टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। देन नेक्स्ट हेडिंग, इफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट इंटर परपेंडिकुलर टू फील्ड। अब हम पाथ लेंगे when charge particle does not enter perpendicular to magnetic field. Charge particle does not enter perpendicular to field. ये जो चार्ज है ये फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर नहीं कर रहा है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। In this magnetic field, plus Q charge enters at an angle theta with the field. मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा एंगल बनाते हुए इंटर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल 90 नहीं है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ पाथ इट विल बी डिस्क्राइबिंग। तो जब भी पाथ पूछे तो देख लेना कि हाउ द चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन द फील्ड। If it enters perpendicular to magnetic field, then circular path। अब इसमें देखते हैं, जब v वेलोसिटी से इंटर करेगा तो इसको रिजॉल्व कर दो। ये कंपोनेंट v cos थीटा एंड दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस विल बी v sin थीटा। और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स को ये कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू the component of velocity which is perpendicular to magnetic field will contribute to Lorentz force। तो ये लॉरेंज फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है लेफ्ट टू राइट, और जो वेलोसिटी कंट्रीब्यूट कर रही है वो ऊपर को है, तो फोर्स इनवर्ड लगा और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्किल में मूव करेगा। ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चार्ज विल मूव इन सर्कुलर पाथ इन दिस वे। ऐसा सर्कुलर पाथ, क्योंकि फोर्स इनवर्ड आ रहा है तो चार्ज इस तरह से मूव करेगा, बल्कि इस तरह से मूव करेगा। और ये वाली वेलोसिटी जो है इसको साइमल्टेनियसली फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएगा। देखो ये वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स इनवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक